Good morning, ninth class. Today we are going to start our next topic, that is molecular structure. Molecular structure of plasma membrane. हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। तो पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं पीएम से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिनोट कर रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इज लिविंग, थिन, इलास्टिक and selectively permeable membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है, थिन है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है इस मेम्ब्रेन में, और ये क्या है? सेलेक्टिवली परमेएबल है। कि क्या है सेलेक्टिवली परमेएबल? वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से सॉल्वेंट को तो फ्रीली पास होने दे, बट सोल्यूट को सेलेक्ट करके ही अपने अंदर से पास होने देती है। इस टाइप की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व अंडर अ microscope, and that microscope will be light. But the cell organelles which are present in the cytosol are observed with the help of electron microscope. It was thought that plasma membrane is made up of proteins, lipids and small amount of carbohydrates. So to find the actual structure of plasma membrane, two scientists or two models were proposed by different scientists. Two models were proposed, and these models were, first model was lamellar model and second model was fluid mosaic model. Now we will study about these models. What was the characteristics of plasma membrane given by in this model by the different scientists. So first model was lamellar model. This model was given by or proposed by Danieli and Davison. These are the two scientists in which they proposed the model in 1935, and other scientist which was J.D. Robertson in 1959. These scientists give their ideas on the molecular structure of plasma membrane. According to these scientists, plasma membrane has 3 layers. Mono, this is the first layer, this is the second layer and this is the third layer. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या बोला था जब इन्होंने
इस मॉडल को प्रपोज किया था, कुछ डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स हैं। वो 3 लेयर्स कैसे अरेंज्ड हैं? डार्क, सेंटर में लाइट लेयर और फिर बिलो डार्क लेयर। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सेंटर में जो लाइट लेयर प्रेजेंट है, this light layer also consists of a lipid bilayer, and this lipid bilayer is sandwiched between two proteins layer. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसे बताया गया था? दिस इज द प्रोटीन लेयर एंड दिस इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर और ये थर्ड लेयर थी, वो भी किसकी थी? प्रोटीन की। ये डार्क लेयर थी, ये लाइट लेयर थी जो कि लिपिड बाइलेयर थी, और ये फर्दर डार्क लेयर थी। तो लैमेलर मॉडल में ये सब बताया गया था कि जो किसने दिया था लैमेलर मॉडल? डैनियली एंड डेवसन इन 1935 और जेडी रॉबर्टसन इन 1959. According to these scientists, it was thought that plasma membrane consists of 3 layers, and these 3 layers are arranged as dark, light, dark. And the light layer which is present in the center consists of lipid bilayer, and this lipid bilayer is situated like a sandwich between two protein layers. This lipid bilayer को क्या बोला गया था? सैंडविच, and this sandwich is between the two protein layers. Next model was fluid mosaic model. This model was given by Singer and Nicholson in 1972. According to these scientists, it was thought that plasma membrane is made up of lipid bilayer and two types of protein molecules. इन साइंटिस्ट ने क्या बोला था? सिंगर एंड निकोलसन ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उस लिपिड बाइलेयर में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट हैं। तो वो प्रोटीन कैसे प्रेजेंट हैं? द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वर एक्सटर्नल प्रोटीन्स and internal proteins. These proteins, such as internal proteins, were embedded in the lipid bilayer, and external proteins are present on the periphery of lipid bilayer. And the lipid bilayer forms a highly viscous fluid. Lipid bilayer forms a highly viscous fluid in which proteins are organized. स्ट्रक्चर देखो कैसे है इसका। This is
लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं और 2 लेयर में प्रेजेंट है, इसको इसलिए बोला लिपिड बाइलेयर। और इस लिपिड बाइलेयर में जो विस्कस फ्लूइड है इसमें क्या प्रेजेंट है, इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो इस लिपिड बाइलेयर में एम्बेड हैं। और जो एक्सटर्नल प्रोटीन है जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस लिपिड बाइलेयर के पेरिफेरी पर। दीज आर द एक्सट्रिंसिक proteins. This was the fluid mosaic model. नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, इट गिव्स फॉर्म टू द सेल, फॉर्म मीन्स शेप, साइज। सेकेंड फंक्शन है इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। इंडिविजुअलिटी मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग दिखाती है, उसको इंडिविजुअल मेंबर शो करती है। ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट नहीं है, हर एक सेल की खुद की एक लेयर है, खुद की एक मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल की इंडिविजुअलिटी को शो करती है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। कि सेल है जो उसको इंजरी से प्रिवेंट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इज सेलेक्टिवली परमिएबल है। It allows the entry of certain selected solutes and freely entry of solvents. Next है plasma membrane forms cell organelles within the cytoplasm. Plasma membrane junction keeps the cell together. Last है plasma membrane keeps the cell content at their place and do not mix them with extracellular material. क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो सेल कंटेंट हैं, जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, उसको क्या करती है, अपने प्लेस पर ही रखती है, उधर उसको इधर उधर मिक्स होने से प्रिवेंट करती है।